From today, we shall start a new subject, that is economy. It is a new subject because during our school days and college days, we don't study economy, rather, we study economics. So, there is difference between economy and economics. Economics can be defined as that branch of study in which we study about different activities which are related with production, distribution, exchange, and consumption of goods and services, the system of monetary arrangements, and most important, the principles they involve in their carrying forward, and all types of principles which are applied in carrying these activities. They also provides the study of interdependence of capital, of different factors of production, and how they can be improved, how they can be arranged in such a way that more prosperity and more growth rate in the activity of income generation and asset creation could be achieved. While economy refers to the study of those economic activities and management of resources, the way in which the asset creation is done, the way the sale and purchase and their effects are created within a specific boundary, whether it is political or cultural or whatever, but generally it is the political boundary, and within that boundary, if we study about all these things, that is known as economy. One more difference is that in the economics we are concerned with the theory and practice of economy and economic activities both, but in the study of economy we emphasize mainly on the practice and status of the economic activities and its indicators. So, economy differs from economics, and from the point of view of our examination, economy is becoming very important day by day. It is very favorite of the question setter, and around 10 to 20 or 25 questions are asked on economy, and further its special characteristics is that it is not like history or science that once you study about them you can apply it year by year. In the case of economy,
you have to change, you have to revise it month by month. Leave the period of year by year aside, we have to revise it month by month. So it becomes very difficult, but we shall study it in systematic way, and I hope that you will get it in better way. From the point of study of economy, it can be classified into two different categories. One, microeconomics, and second, macroeconomics. See, all activities are done on different levels. When the sale and purchase, when the production, when the consumption, when each and every economic indicator is seen at very small level, say at the level of a family, at the level of a particular company, at the level of a particular segment of economy, then it is termed as microeconomics. जब हम कोई छोटे लेवल पर, जैसे कि मान लीजिए एक घर की महिला को लोग मजाक में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, तो वो क्या है, वो ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, लेकिन वो जो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करती है कि कैसे फाइनेंस, कैसे जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कोई चीज़ खरीदा जाएगा, कैसे उसका कंजम्पशन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का कंजम्पशन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का नहीं किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा, तो ये सारा जो वो काम करती है घर की महिला, तो इस चीज़ को हम बहुत छोटे लेवल पर देखते हैं, तो वो आप उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालते हैं। या अगर इसी को हम थोड़ा और बड़ा करते हैं तो मान लीजिए किसी कंपनी के लेवल पर है, मान लीजिए हम रेमंड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, हम टाटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर, और वो भी मान लीजिए ये टाटा के हम किसी केवल मोटर की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलायंस में केवल जियो की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो माइक्रो लेवल होता है और उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनमें जो है काफ़ी डिफरेंट थिंग्स को हम लोग स्मॉल लेवल पर पढ़ते हैं। वेयर एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स those subjects are included which are associated with, which are concerned with the common people of that particular sphere, that particular boundary, whether it is state or whether it is nation, which are as follows. Number one, for example, prices of goods and services in that particular economy. ठीक है। Number two, what is the condition of employment in that economy. Number C, different indicators of economy which indicate or which explain the whole thing of that economy at the level of complete economy, and it indicates that how the whole economy is moving, whether it is
affecting the economy at broad level or not. Number D, wages, that is remuneration. Wages is a labor, and remuneration is a factor of प्रोडक्शन. एक प्रोडक्शन का फैक्टर है. अगर ये नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न होगी. सो डी remuneration or wages, and E interest rates. So in macroeconomy, it is tried to address the whole economy and its various indicators and conditions so that whole economy could be studied. In microeconomics, we also study about demand and supply, but at the level of microeconomics, we are concerned only to the personal agents. Rather, in the macroeconomics, we are concerned with the whole economy or a larger section of the economy. In the early days, especially before the Industrial Revolution, the whole thing was based on the concept that economic activity is the activity between the seller and purchaser of any goods and services. They viewed that government has nothing to do with these activities, and government is only concerned with the collection of land revenue and other types of taxes. This was more or less the concept of Adam Smith. But when things developed, level of production increased, industrial revolution revolutionized the system of production, then the government day by day became responsible for employment of the common people, the defense of the nation, and setting up of a military setup, the public health, in the sphere of education, and other important social goals which was not based on any economic favor. Rather, it was the result of emergence of the concept of the government which is established on the basis of welfare of the people. लोक कल्याणकारी राज्य. लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जब होने लगी धीरे धीरे, जब चारों तरफ जब डेमोक्रेसी जब बढ़ने लगा, तब जो है ये अब जो सेठ महाजन और जो श्रेणी और श्रेष्ठीन का जो काम होता था एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड में, अब वो गवर्नमेंट के लेवल पर रेगुलेट होने लगा और बहुत सारे जो चीज़ें हैं अब वो निस्वार्थ रूप से, उसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सरकार उसमें लोगों के कल्याण के लिए काम करती है और उनके बुरे समय में उनको सपोर्ट करने का काम करती है, और उसी के आधार पर जो है इसमें ये गवर्नमेंट काम करती है. अब उसमें उसका जो गोल्स होता है और जो प्रिंसिपल्स होता है वो सभी के लिए होता है. इसमें वो कई प्रकार की काम करती है. इसमें वो टैक्सेशन भी करती है, इसमें वो ये एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट भी करती है,
वो मनी सप्लाई और डिमांड को भी रेगुलेट करती है। हाउ द फ्लो ऑफ मनी कुड बी रेगुलेटेड, इस पर भी वो काम करती है। तो ऑल दीज आर बेसिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स there are two most important elements. Number one, its decision making bodies, suppose for example RBI, SEBI or other government departments, have to emphasize, have to follow, have to pursue the public goal, the common goal, सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होता है उनको। और वो जो है, वो लक्ष्य जो होते हैं सार्वजनिक लक्ष्य, उनको कहते हैं जो कि सारे जनता से रिलेटेड हो, पूरे देश या उस पर्टिकुलर बाउंड्री से रिलेटेड हो। ये तो बात आप समझ सकते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है, सेकेंड एलिमेंट, इज द प्रॉपर मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन एंड देयर डिप्लॉयमेंट in such a way that the public goal could be achieved। आप समझिए कि केवल बेरोजगारी हटाने और गरीबी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित करने से तो सरकार और उसके जो बॉडीज़ हैं उससे काम नहीं न चलेगा। यहाँ पर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे या तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारे कोयला हैं, जैसे हमारे मिनरल्स हैं, या माने और भी जो भी हैं, लैंड है, या जो हमारा जो इंडस्ट्री का ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो रोज़गार क्रिएट कर सके, वो गरीबी दूर कर सके, कॉमन पीपल को उससे फ़ायदा हो सके। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी पढ़े हैं, जो हम लोग जैसे कि स्टेट इज़ डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट डन इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, रेदर इट शुड सर्व द कॉमन गुड। तो ये कॉमन गुड के लिए जो वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कर्ब करने का, को प्रोहिबिट करने का, को रेगुलेट करने का जो बात है, तो उसको इसमें देखना है, इसमें पढ़ना है। सिंपल सा बात है कि माइक्रो में हम निजी हित के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि हम जनता के कल्याण के लिए और संपूर्ण देश के लेवल पर करते हैं। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड from the book of John Maynard Keynes, John, John, Maynard, Maynard, Keynes, Keynes. In his book, The General Theory of Employment, Interest and Money, it was published in 1936। ये जो 1936 का जो पीरियड है, ये वो पीरियड है जब सारा वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, वैश्विक महामंदी जो था, उसके प्रभाव से त्रस्त हो गया था। और जो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोज़गारी दर जो है, 1929 के 3% से
1933 में बढ़ गया और ये 25% हो गया मात्र 4 साल के समय में। और टोटल आउटपुट जो है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें 33% का डिक्लाइन हो गया, 33% की गिरावट आ गई। तो यहाँ पर अब जो थ्योरीज जो थी पहले वाली सब फेल हो रही थी। तब कीन्स नए थ्योरी लाए और उसके आधार पर उन्होंने यह व्यवस्था किया, यह बताया कि नंबर 1, द फंक्शंस and system of functions of the economy has to be studied, and number 2, the interdependence of different sectors of that economy has also to be emphasized। तो ये दो चीज़ जो है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पहला और विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता, इस पर जो है अध्ययन करने में उन्होंने जोर दिया और इसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना गया। ये कीन्स के जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक था, उसी के माध्यम से इसका उद्भव हुआ, इमर्जेंस हुआ। Thus, in the macroeconomics, we study about different factors of productions like capital, land, labor, and things related to them, revenue, profit, investment, expenditure, different units of production which are referred as firms, the government sector, the household sector, the export, import, and flow of foreign capital. All these things are studied under the economy. Now, we shall see that what are important elements, important points in the study of any economy. In any economy, two types of major concerns are there. Number 1, the proper and appropriate distribution of limited resources। जो हमारे रिसोर्स हैं उनका हम कैसे अरेंजमेंट करें, मैनेजमेंट करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें। एक तो ये प्रॉब्लम होता है और ये इकोनॉमी का मेन कंसर्न होता है, मेन पॉइंट होता है। और दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट इकोनॉमी। कैसे वो लोगों तक पहुंच रहा है, कैसे लोग उसको पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ को देखना होता है। और इन सभी चीज़ों का जो लक्ष्य क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमी इज दैट द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in that economy could be continued and improved and increased। जो भी उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो प्रवाह है वो कायम रहे और उसमें समृद्धि हो, उसमें वृद्धि हो। एंड सेकेंड इज टू क्रिएट द इनकम एंड वेल्थ। जैसे हम लोगों का हुआ कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये
क्या है कि आय और संपत्ति हमारा क्रिएट हो। दो ही चीज़ है। क्या है? अभी आप बीच बीच में लिखते भी रहिएगा जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है। हालांकि अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें समझने का ही ज़्यादा है, लेकिन जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट लगता है आप उसको नोट करते जाइएगा। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अलग है, वो पॉलिटी से अलग है। तो थोड़ा सा उसको पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी जो है अलग होगा। इसमें आपको और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको पहले नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेने लगेगा पढ़ाई में, जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है दो चीज़, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नंबर 1 एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम नंबर 2। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की आय का जो सीधा संबंध होता है वो उसके आर्थिक संपत्ति के सृजन से होता है। इनकम ऑफ एनी नेशन और इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द creation of asset in that economy, and the creation of asset is related to the scientific and efficient use of the natural resources of that economy or country। इच्छा किसकी नहीं होती है कि हम संपत्ति का सृजन करें, लेकिन उसके लिए आपको बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि किस बात की? बुद्धि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का। जब जो भी रिसोर्स है उसी का यूज़ करके ना कोई एसेट क्रिएट करता है। आप मान लीजिए आपके पास लगता है कि नॉलेज जो है वो है, वही आपका रिसोर्स है, तो आप उसको क्रिएट कर कर आप एक नौकरी प्राप्त करते हैं। या किसी को लगता है कि मेरे पास ज़मीन है, तो वो उसको जितना अच्छा से उस ज़मीन को यूज़ करेगा उतना ही वो आय का, वो संपत्ति का सृजन करेगा। तो राष्ट्र की आय का सीधा संबंध संपत्ति के सृजन से, संपत्ति के सृजन का सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सदुपयोग से। और ये जब हो गया तब बाय द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वी ऐड वैल्यू इन दैट रिसोर्सेज। तब हम क्या करते हैं? उसमें मूल्यवर्धन करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास ज़मीन है तो उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे। अगर वो कमर्शियल है हम उसमें अपार्टमेंट बनवा देंगे, हम उसमें फैक्ट्री खोल देंगे। अब ऐसे अगर वो ज़मीन पड़ा हुआ है तो वो बेकार है। हम उस पर अगर खेती करेंगे, हम मान लीजिए अगर उसको खेती भी करते हैं काफ़ी अच्छे से, अगर हम उसको साइंटिफिक ढंग से यूज़ करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को हाईली फर्टाइल है, तो हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके वैल्यू में एडिशन होगा। तो वो जो है हमारे लिए वो क्रिएट करेगा एसेट, और हमको उसके उत्पादन प्रक्रिया को अपनाना होगा कि उस रिसोर्स से हमको, उस रिसोर्स से हम किस प्रकार का उत्पादन प्रक्रिया यानी कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हम इस्टेब्लिश करें, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ें। सो वी कम टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, ये इन पर हम विचार करते हैं।
all goods and services which are produced in that economy have to be studied by us. Now, if we look at these goods and services, we can categorize them into two categories. Some goods and services are consumed by its target people, by its consumers. They don't change in the form and in the status of that goods which are obtained or purchased by them. जिस प्रकार से वो प्राप्त कर रहे हैं उसी प्रकार से उसका कंज्यूम कर रहे हैं. Those goods and services are termed as final goods. बात समझ में आई? अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स. ये अब यहाँ से लिखते चलिए कि ऑल goods and services of an economy can be divided into two categories, that is final goods and, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा और, on the other hand, the second category of goods and services are those which are produced, delivered to certain kinds of consumers, but they don't consume these goods as they receive it, rather they improve it, they change their forms, their status, and they utilize these goods in the production of other goods. जैसे कि हम आटा लिए, हम गेहूँ लिए और गेहूँ से हम ब्रेड बनाए, तो यहाँ पर गेहूँ क्या हो गया? यहाँ पर गेहूँ इंटरमीडिएट गुड्स हो गया. एक एग्जाम्पल के लिए, हमेशा आप इसी को दिमाग में नहीं रखिएगा, तो हम उसमें आपको लिखवा रहे थे कि नंबर 1 फाइनल गुड्स एंड नंबर 2 इंटरमीडिएट गुड्स. दो तरह के वस्तु होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स. इसको लिख लीजिए. अब देखिएगा कि फाइनल गुड्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेड बना, तो ब्रेड हम खरीदे और खा गए. एक आदमी गन्ना पेराई का मशीन लिया जिससे वो गन्ना का जूस निकालता है. तो वो गन्ना का जूस निकालता है तो वो क्या करेगा? वो मशीन को खा जाएगा? वो उस मशीन से अब वो अपना इनकम जनरेट करेगा, वो जूस बनाएगा. और तो वो जूस अगर तभी न बनेगा जबकि वो मशीन रहेगा, मशीन नहीं रहेगा तो जूस नहीं बन पाएगा. तो उस मशीन का यूज़ वो आगे दूसरे प्रकार के गुड्स को क्रिएट करने में किया. तो जिस वस्तु का इस्तेमाल हम आगे आय के सृजन में, संपत्ति के सृजन में या आगे किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में करते हैं, तो ऐसे वस्तु को हम पहले बता देते हैं, ऐसे वस्तु को कैपिटल गुड्स कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं. तो अब आपको लग रहा होगा कि इंटरमीडिएट वाले में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता लगता है कि बोले थे, लेकिन इंटरमीडिएट वाले में ये चीज़ ध्यान रखना होगा, इंटरमीडिएट वाले में वो गुड्स डायरेक्टली यूज़ होता था. वो जो गेहूँ था ब्रेड में ख़त्म हो गया.
यहाँ पर मशीन जो है गन्ना पेराई का, वो उसमें केवल यूज़ हो रहा है, उसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है। सो फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। नाउ कंज्यूमर गुड्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। जैसे एक तो हम ब्रेड का बताए, ब्रेड लाए और खा गए, लेकिन हम टीवी खरीद के लाए तो उसको हम 6-7 साल उसको हम देख रहे हैं। सो कंज्यूमर गुड्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड नंबर 2 नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो आप यहाँ पर ये समझें कि कैसे फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स किसको कहते हैं, कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आज हम इतना ही तक यहाँ पर रखते हैं। आज पहला दिन, आप इसको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में इंटर करने में हो सकता है कि दिक्कत हो समझने में, या एक मेंटल बैरियर भी रहता है, एक नीरस लगता है। तो आप इसको सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से सुनिएगा, बार बार सुनिए और लिखने का कोशिश करिए। जितना लिखिएगा दिमाग में उतना अटेगा। फिर हम लोग आगे अगले क्लास में बढ़ेंगे।